Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Fighting for Freedom. And what we are going to read in this chapter about Jawaharlal Nehru, Bal Gangadhar Tilak and Khan Abdul Ghaffar Khan, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Sarojini Naidu and P.R. Ambedkar. India was a rich country in the past. Many foreigners came here as traders. The Arabs were the first to come to India and the English were the last to be emerged as the winner. They took advantage of the lack of unity among Indian rulers and slowly and gradually they took the control of India and exploited Indians. Many learned people protested against the British rule and brought awareness among the people. All Indians joined hands to overthrow the British. Let us study about some of the great freedom fighters of our country जिन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंट होने में काफ़ी हेल्प की. ठीक है, इंडिया एक रिच कंट्री था पास्ट टाइम पर. बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फॉरेनर्स ने इंडिया में ट्रेडर के रूप में वो आए. ठीक है, सबसे पहले अरब्स आए थे, उसके बाद लास्ट ब्रिटिशर्स थे जो विनर निकले, जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल तक रूल किया, इंडिया के लोगों को एक्सप्लॉइट किया, यहाँ से बहुत सारी वेल्थ इंग्लैंड में जाकर भर दी. ठीक है, बहुत तरीके से इंडियन को एक्सप्लॉइट किया. और इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे ऐसे इंडियन लीडर आए जिन्होंने लोगों में अवेयरनेस जगाई, लोगों को ये एहसास कराया कि हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं, हम खुद इंडिपेंडेंट हो सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से सब लोगों ने एकजुट होकर ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा दिया. नाउ ऐसे ही लीडर्स की हम वन बाय वन बात कर रहे हैं जो फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने हमारे इंडिया को फ्री कराया ब्रिटिशर्स से. The first is Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru was born on 14 November 1869 in Allahabad and his father was Motilal Nehru. The young Jawaharlal Nehru studied at Harrow and went on to attend ट्रिनिटी कॉलेज इन इंग्लैंड. इन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड से पूरी की थी. जवाहरलाल नेहरू और पंडित नेहरू एज ही वॉज कॉल्ड जॉइंड द फ्रीडम स्ट्रगल अंडर अ लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी. और महात्मा गांधी के अंडर की लीडरशिप में इन्होंने काम किया. ही टुक पार्ट इन द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड वॉज जेल्ड सेवरल टाइम. इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और जिनके लिए बहुत बार उन्हें जेल जाना पड़ा. Here, do you know, Pandit Nehru had the honor of raising the national flag of independent India at the Red Fort for the first time on 15 August 1947. कितने प्राउड की बात है. पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनको ये ऑनर मिला था कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया का फ्लैग 15 अगस्त 1947 को फहराया था. ओके, नाउ पंडित नेहरू went on to become India's first prime minister and served from 1947 to 1964. इसके अलावा पंडित नेहरू जो थे वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे. Nehru is known as the architect of modern India. He believed in a single unified India. वो चाहते थे इंडिया एक सिंगल यूनिट हो. Some of the highlights of his life and leadership are: first is he created the Planning Commission and introduced 5-year plans for the development of independent India. इन्होंने प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस की और 5-year प्लान इंट्रोड्यूस किया. Second, he introduced free and compulsory primary education for all. सबके लिए 5th क्लास तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए, ये भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. The third is the Institutes of Excellence, the IITs and AIIMS were set up in his time. उनके टाइम पर ही एम्स IIT जो आप नाम सुनते हो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनके टाइम से ही इनकी शुरुआत हुई थी. नेक्स्ट, he was one of the first to start the non-aligned movement which encouraged the countries in Africa and Asia to work together and be heard as a single voice by the rest of the world. और यही फर्स्ट इंडियन थे, ठीक है, जिन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट की और सबको एक आवाज़ के साथ, एक सुर के साथ इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, नेक्स्ट इज
He was a fine orator and writer. His book The Discovery of India is famous all over the world. ये एक अच्छे orator थे, ठीक है, बहुत अच्छी speech देते थे और एक अच्छे writer भी थे. इनके book Discovery of India जो है वो पूरे world में famous है. Next, he gave many memorable speeches including Tryst with Destiny to mark India's independence and The Light Has Gone Out of Our Lives to announce the death of महात्मा गांधी. इन्होंने बहुत सारे स्पीच दिए हैं, ठीक है, इनकी बहुत सारी स्पीच जैसे जिसमें से इंडियन इंडिपेंडेंस को जो दिखाया है एक स्पीच ट्राइस्ट विद डेस्टिनी एंड द लाइट हैज़ गोन आउट ऑफ आवर लाइव्स. जब महात्मा गांधी जी की डेथ होती है तो ये दो स्पीचेस इनकी बहुत ज़्यादा फेमस है. हिज लव फॉर चिल्ड्रन इज़ वेल नोन और बच्चे जो थे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू बुलाते थे. इनका बर्थडे जो है वो चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है. कब आता है चिल्ड्रन डे? 14 नवंबर. ओके. नेक्स्ट लीडर हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल. वल्लभ भाई जवाहर भाई पटेल वॉज बोर्न इन नदियाद गुजरात इन 1875. गुजरात 1875 में इनका जन्म हुआ था. ही वॉज अ सक्सेसफुल लॉयर. क्या थे ये? लॉयर थे. इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी. ये भी महात्मा गांधी की लीडरशिप में इन्होंने काम किया था. पटेल जॉइंड द फ्रीडम मूवमेंट इन 1928. ही सक्सेसफुली लेड द लैंड ओनर्स ऑफ बरदौली इन देयर रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंक्रीज टैक्सेस. इट वॉज हिज एफिशिएंट लीडरशिप ऑफ द बरदौली कैंपेन दैट अर्नड हिम द टाइटल सरदार मीनिंग लीडर. इन्होंने जब किसानों की हेल्प की थी बरदौली में हाई टैक्सेस के अगेंस्ट कि ये टैक्स पे नहीं करने हैं, इसी कारण उनको नाम दिया गया था सरदार का, जिसका मतलब था लीडर. ही वॉज नोन फॉर हिज आयरन विल एंड करेज. ये बहुत ज़्यादा बहादुर थे जिसके नाम से ये जाने जाते हैं. ही लाइक मैनी अदर लीडर्स वेंट टू प्रिजन एंड सेवरल टाइम्स फॉर रेजिंग हिज वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिशर. और बाकी लीडर्स की तरह इन्हें भी बहुत बार जेल जाना पड़ा. He was also known as the Iron Man of India. इनको Iron Man of India भी कहा जाता है, ठीक है. 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, who is called the Iron Man of India? So who is called? वल्लभ भाई पटेल. Fine. Now सरदार वल्लभ भाई पटेल passed away on 15 December 1950 in Mumbai. Next leader है बाल गंगाधर तिलक. Bal Gangadhar Tilak was a great journalist, Sanskrit scholar, mathematician and a natural leader. The British called him the father of Indian unrest. और क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स इन्हें? The father of Indian unrest. His slogan स्वराज सेल्फ रूल इज़ माई बर्थ राइट. इनका स्लोगन जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे इंडियन को जिसने इंस्पायर किया कि जो आज़ादी है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है. हिज बुक गीता रहस्य इज़ अ क्लासिक ट्रेटाइज ऑन गीता इन मराठी. इनकी एक बुक है गीता रहस्य जो मराठी अनुवाद है गीता का. ही फाउंडेड स्कूल्स एंड पब्लिश्ड न्यूज़पेपर्स. ही स्पेंड मैनी ईयर्स इन अ डिस्टेंट जेल एट मैंडेले इन बर्मा. ही डाइड इन 1920. वी रिमेंबर हिम एज द लायन ऑफ इंडिया. और इनको हम आज भी याद करते हैं एज अ लायन ऑफ इंडिया. ओके. नेक्स्ट लीडर हैं भगत सिंह. Bhagat Singh was born on 27 September 1907 in Lalitpur, Punjab. He was one of the most prominent faces of India's freedom struggle and a symbol of heroism of the youth of India. ये आपने मूवी भी देखी होगी भगत सिंह पर, काफ़ी मूवीज़ भी बनाई गई हैं. तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हीरोइज्म थे यूथ ऑफ इंडिया के. भगत सिंह फैमिली वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द फ्रीडम स्ट्रगल. इनकी पूरी फैमिली ही फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व थी. एज ए चाइल्ड ही वॉज डीपली अफेक्टेड बाय द मैस्केयर इन जलियांवाला बाग. जब ये बच्चे थे उस टाइम जलियांवाला बाग मैस्केयर हुआ था जिससे ये काफ़ी अफेक्टेड थे. ऑन 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह वॉज अरेस्टेड फॉर बॉम्बिंग द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग दैट वॉज जेल्ड. एंड भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सबको फांसी की सजा दी गई. एंड फॉर द मर्डर ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मिस्टर संदेश ऑन 7 अक्टूबर 1930 भगत सिंह एंड हिज एसोसिएट्स वर हैंग्ड इन द अर्ली आवर्स ऑफ 23 मार्च 1931, जिसको अभी भी हम लोग शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, मार्टियर्स डे. ओके. डू यू नो
The young Bhagat Singh did not defend himself in court, feeling that his death would serve the cause of freedom better. He stopped his father from going to the British with the mercy petition. He was right. He is remembered for his bravery. He will forever be remembered as a shaheed martyr. भगत सिंह जो थे, इनके फादर एक मर्सी पिटीशन देने वाले थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि इनको माफ़ कर दिया जाए, लेकिन भगत सिंह ने मना कर दिया था क्योंकि उन्हें लगता था अगर वो शहीद होंगे देश के लिए तो बहुत सारे यूथ जो हैं वो इससे इंस्पायर होंगे, और वो बिल्कुल सही थे। आज भी बहुत सारे लोग, आज भी हम लोग, ठीक है, सभी इंडियंस, ऑल इंडिया जो है वो इनको शहीद के रूप में याद करता है। नेक्स्ट इज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस पॉपुलरली नोन एज नेताजी, जिनको लीडर नेताजी के नाम से सब लोग जानते हैं। कहाँ इनका जन्म हुआ था? दैट वाज बोर्न इन कटक इन ओडिशा ऑन 23 जनवरी 1897। ही अटेंडेड स्कूल इन Cuttack and Calcutta, now Kolkata, and later joined the prestigious Indian Civil Services. उसके बाद Indian Civil Services इन्होंने join की। He went to England in 1920 but resigned from the ICS within a year to devote his life to the freedom of the country. अब उसके बाद सिविल सर्विस जब इन्होंने ज्वाइन की तो इनको इंग्लैंड भेज दिया गया, इनकी पोस्टिंग इंग्लैंड की गई, लेकिन 1 साल में ही इन्होंने रिजाइन दे दिया क्योंकि ये अपने देश की सेवा करना चाहते थे, अपने देश को फ्री करना चाहते थे। Netaji went on to become an important member of the Indian National Congress and twice became its president. 2 बार प्रेसिडेंट बने हैं ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के। And although Netaji greatly admired Gandhiji, he did not believe that freedom could be achieved using non-violent protest. और गांधी जी के फॉलोवर रहे हैं, गांधी जी की हमेशा इन्होंने प्रशंसा की है, लेकिन वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं थे कि गांधी जी का कहना था कि फ्रीडम जो है वो नॉन वायलेंट तरीके से पाई जा सकती है। ये बिल्कुल अपोजिट थे। द इनजस्टिस एंड क्रूअल्टी ऑफ द ब्रिटिश convinced him that only a well organized army could force them out of India. वो क्या कहते थे कि ब्रिटिश इतने क्रूल हैं कि प्यार से, शांति के साथ उनके साथ हम लड़ाई कर ही नहीं सकते हैं, उनको अपोज कर ही नहीं सकते, प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते। सिर्फ एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी हमें ऐसी चाहिए ताकि हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा सकें। वर्ल्ड वॉर 2 provided an opportunity to Netaji, जिसमें 1941 में आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर नेताजी disguised himself as a Pathan and escaped through अफगानिस्तान to the USSR, और यहाँ पर जर्मनी के साथ इन्होंने जापान के साथ एक अपनी खुद की फोर्स बनाई। विद जापानीज सपोर्ट द फोर्स इज आज़ाद हिंद फौज, ऑल्सो नोन एज द इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या करेगी? फाइट करेगी, क्योंकि जापान के भी एनिमी कौन थे? ब्रिटिश थे। इंडिया के भी एनिमी कौन थे? ब्रिटिश थे। नेताजी encouraged women to participate and formed an all women unit for the आज़ाद हिंद फौज called the रानी झांसी ब्रिगेड, और इन्होंने अपनी आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं को भी स्थान दिया। उन्होंने विमेन को भी काफ़ी एनकरेज किया कि वो भी देश की आज़ादी में सामने आ सकती हैं, अपनी एक फोर्स बना सकती हैं, जिसको नाम दिया गया रानी झांसी ब्रिगेड। डू यू नो, during one of his many escapes from the British, Netaji dressed as a Pathan and gave the British the slip. ठीक है, कई बार ऐसा हुआ कि उनको ब्रिटिशर्स पकड़ने को हुए, लेकिन एक बार पठान बनके उन्होंने ब्रिटिशर्स को धोखा भी दिया। Now, the Azad Hind Fauj fought with great valor but were forced to surrender when Japan was defeated in the war. अब आज़ाद हिंद फौज ने काफ़ी अच्छे से क्या किया? लड़ाई की, ठीक है, बहुत बहादुरी के साथ ब्रिटिशर्स का सामना किया, लेकिन जब जापान वर्ल्ड वॉर 2 में हार जाता है तो आज़ाद हिंद फौज को सरेंडर करना पड़ा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लीडर हैं B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर, जिनका नाम था बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके नाम से भी जाने जाते हैं। वॉज बोर्न ऑन 14 अप्रैल 1891. He was a great leader, scholar and the chief architect of the Constitution of India, जिनको father of Constitution भी कहा जाता है। Although he was poor, Baba Saheb overcame poverty and caste differences and became a famous scholar. काफ़ी गरीब फैमिली से थे, लेकिन उस
गरीबी से बाहर आए, ठीक है। और जो कास्ट सिस्टम था, कास्ट डिफरेंस था, वो भी एक बहुत बड़ा बीच में क्या था, ऑब्स्केल था, उसको भी ओवरकम किया। ही स्टडीड इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। इन 1927 he launched a movement against untouchability. He fought for the rights of the Dalits to enter Hindu temple, use common wells and taps for drinking water. क्योंकि पहले जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें अनटचेबल कहा जाता था, वो किसी मंदिर में एंट्री नहीं करेंगे, किसी कॉमन वेल से पानी नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब इन्होंने लॉ की तो उसके बाद इन्होंने दलित के राइट के लिए काफ़ी फाइट की, उनकी एंट्री के लिए, हिंदू टेम्पल में एंट्री दिलवाई, उनको कॉमन वेल और टैप जो है ड्रिंकिंग वाटर के लिए वो भी वो यूज़ करेंगे। In 1935, he was appointed the principal of the Government Law College, Mumbai, and after independence, he was asked to draft the Constitution of India. आज़ादी के बाद इनको मौका मिला इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए। He was independent India's first law minister, and Baba Saheb Ambedkar died on 6 December 1956. His birthday on 14 April is celebrated as Ambedkar Jayanti. Now, let us recall the chapter. Pandit Nehru was the first Prime Minister of India. He actively participated in the civil disobedience movement. Bal Gangadhar Tilak is also known as Lokmanya Tilak. He asked the common Indians to join the freedom struggle. Bhagat Singh did not believe that non-violent protest would work. He shot a British police officer and fled. Later, he dropped bombs and was arrested. Subhash Chandra Bose or Netaji admired Gandhiji but did not believe that only non-violent protest would lead to freedom. He formed the Azad Hind Fauj and fought the British during the Second World War. B.R. Ambedkar was the chief architect of the Constitution of India. So this is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.